Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 76 for that topic sexual reproduction in flowering plants. I hope you all are very fine. Now, the board exams are on the way of getting completed and we have to prepare for NEET also. Okay. So, let us learn this article there that will help you in solving MCQs also. What is that? Merits and demerits of autogamy. Now, actually, in that CBSE book, this has not been given there, but the question has been asked to the that students there. And if you read that particular page, you will see that what should be the advantage of autogamy, what should be the disadvantage of that autogamy, that is self pollination and cross pollination also. So we learn all that so that in MCQs that will definitely help. So self-pollination or autogamy we have seen. It is that type of the pollination where the transfer of pollens or pollen grains takes place within the same flower. Try to understand the meaning of that. That means within the same flower. This is that suppose gynoecium, diagrammatically I am sketching, and this is that androecium. Okay. So whatever the pollen grains will come there from that anther after maturity, when they are released, they will get deposited on the same stigma within the flower. And this is known as autogamy. Okay? उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाता है. That is called as autogamy. हमें लगता है ये तो बहुत कन्वीनियंट है. सो व्हाट आर द मेरिट्स देयर? तो उसके एडवांटेजेस क्या है? मेरिट्स और उसे एडवांटेजेस भी कहते हैं. सो हमारे लिए नहीं, ये प्लांट के लिए देखना है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेरिट और मेरिट ऑफ दिस autogamy for plants? First of all, I will say that it is 100% ensured. ये 100% ensured है, यानी definitely it will happen and it will be successful. Okay, it is 100% ensured and successful. ये अनसक्सेसफुल होने के चांसेस 0 है, क्योंकि वहां के वहां ही है, वो कहीं जाना नहीं है. Isn't it? अभी कैसा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम जब बता रहे हैं या ऑनलाइन क्लास है, तो द स्टूडेंट कैनॉट एस्केप फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास. Isn't it? ये पेरेंट्स जो है वो उसको बिल्कुल डांटते रहेंगे, अरे तेरा क्लास था ना ऑनलाइन, 7 बजे था, क्या हो गया? Isn't it? So he has to join that. एक आध बार पेरेंट्स घर में नहीं है तो टीचर को मार देता है वो मैसेज, नेट कनेक्शन इज वेरी पुअर, नेट कनेक्शन इज नॉट देयर, सो आई एम अनेबल टू ज्वाइन. मैंने एक्सपीरियंस लिया है, यानी ऐसे मैसेज मुझे आते हैं कई बार. Then I am also teacher of such kind of the student. I used to forward same message to the parents. तो पेरेंट्स देखते थे कहाँ पे ये था क्या नहीं, उसको व्हाट्सएप भी करते थे. फिर पेरेंट्स क्या हो गया, कुछ तो भी ऐसा, मैं बोलता था उनको व्हाट्सएप कर दो बच्चों को, तो वो समझ में आएगा. व्हाट्सएप अगर उसका ऑनलाइन है, चालू है, और व्हाट्सएप पे अगर वो मैसेज देता है, रिप्लाई करता है, डेफिनेटली नेट इज देयर. Isn't it? So particularly नेट कनेक्शन का बहाना, वर्क फ्रॉम होम अगर है तो ऑफिस वाले भी वैसे ही करते हैं, कंपनी वाले. तो वहां पे वर्क फ्रॉम होम जो है वो जैसा कंपलसरी हो जाता है, अवॉइड करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वैसा सेल्फ पॉलिनेशन का भी है. इट इज नॉट अवॉइडेबल. अगर वही फ्लावर में बाइसेक्सुअलिटी भी है और होमोगैमस भी है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ है. और होमोगैमस का मतलब क्या है? मैच्योरेशन पीरियड्स ऑफ बोथ आर सेम. देन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड माय फ्रेंड. वेरी सिंपल. तो ये हो गया पहला एडवांटेज. देन सेकंड थिंग इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड. External agencies not
रिक्वायर्ड. ओके, कोई बाहर से एजेंट ने पोलन ग्रेन को लाने की जरूरत है क्या? कई बार हम देखेंगे जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, then cross pollination has to occur between two different flowers of two different plants. So at that time, pollen grains from flowers of one plant are to be carried towards the flowers of other plant by some of the agent, क्योंकि they themselves are non-motile. पोलन ग्रेन ऐसे खुद पंछियों के जैसे, बर्ड्स के जैसे उड़ते उड़ते नहीं जा सकेंगे, isn't it? They are to be carried. So they are carried by some agents, either the wind, हम देखने वाले हैं, तो उसे कहते हैं wind pollination, or they can be carried by the that animals like insects, isn't it? भौरा जो है, insects जो है अलग अलग टाइप के, they can also transfer the pollen grains, बहुत पॉपुलर है. या बर्ड्स भी पॉलिनेटिंग कर सकते, एजेंट बोल के काम कर सकते हैं. सो सच थिंग इज पॉसिबल देयर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज मेड इजियर देयर बाय दैट एजेंट्स. पर यहाँ पे एजेंट्स को मस्का लगाने की जरूरत ही नहीं है, isn't it? कब हवा छूटेगी वो अभी उनके दिल पे रह गया ना, या कब इंसेक्ट आएगा और कब पोलन ग्रेन्स को ले जाएगा, फ्लावर को ऐसा उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है. नो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, वहां के वहां ही ट्रांसफर, इवन बाय द लिटिल मूवमेंट ऑफ दैट एंथर. The anther can touch the stigma. ये anther ऐसा stigma को touch करता है, and chances of that pollination are 100% there. So no external agencies are required. ये भी एक important advantage इसका है. Then it is not expensive. ये expensive process नहीं है from the point of view of plant. And plants can save lot of energy. Plants can save lot of energy. क्योंकि एनर्जी सेविंग करने वाली प्रोसेस है. कैसे क्या? इट इज एक्सपेंसिव नहीं है. प्लांट्स नीड नॉट spend that energy there. Why I also saying like that? Because दो चार चीजें हैं. सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी घर का मामला है, तो मेकअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है. पहली बात ऐसी है, फ्लावर्स नीड नॉट बी वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल. सज धज करने की जरूरत नहीं है. फ्लावर्स नीड नॉट बी अट्रैक्टिव. उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलरफुल पेटल्स बनाओ, ये बनाओ, वो जरूरत नहीं है, isn't it? घर में ही, घर के ही है, तो मेकअप करने की क्या जरूरत है, isn't it? देन अनदर, अभी देखो वर्क फ्रॉम होम में लोग कैसे बैठते हैं. अभी मैं तो अच्छी तरह से तैयार होके आया हूँ, बट वेन एवर द वर्क फ्रॉम होम इज देयर, वैसे ही बैठते हैं आराम से. अगर बाहर जाके काम करने का है तो कुछ तो भी लगेगा सच, क्योंकि लोग देखते हैं ना हमको, isn't it? So here that expenses are not required. आपने बीच में सुना होगा, लॉकडाउन जब हो गया था तो ज्यादा से ज्यादा जो सेल हो गया गारमेंट्स का, वो शॉर्ट्स का ही, और वो नेक टाई वाले अपने घर में जो डालने के टी शर्ट्स थे वो, बस. यानी वो ऐसे शर्ट्स एंड दैट और ट्राउजर्स एंड पैंट्स रिमेन अनसोल्ड, क्योंकि लोगों को बाहर जाना ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम ही करना था, तो शॉर्ट्स पे बैठते थे. और इतना ही आता है. अब मैंने नीचे शॉर्ट पहना है या ट्राउजर पहनी, आपको क्या चल रहा है, देख रहा है? नहीं देख रहे ना आप, isn't it? So whatever it may be, नहीं भी पहना है, समझो नीचे नहीं भी पहना है मैंने, तो भी क्या आपको दिखने वाला है क्या, isn't it? That is it. तो यानी to spend the energy not required. तो flowers need not be, पहली बात ये है, because ये एनर्जी कैसे सेव होती है, because flowers need not be scented. Flowers need not be large. Then they need not be, ये need not be मैं पहले कॉमन लिख देता हूं, बाद में एक नहीं. Because flowers need not be, because flowers need not be, number A, large
attractive, colorful, isn't it? Scented. Flowers need not be scented. उनको fragrance नहीं रहा तो भी चलेगा. Then flowers need not be with nectar. Okay, and flowers need not be with abundant pollen grains. Abundant pollen grains की भी जरूरत नहीं है. वो क्या होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन करना है, isn't it? At that time there are chances of wastage of the pollen grain in the transit. So at that time more and more pollen grains are required to be produced. But यहाँ पे तो वेस्टेज का कुछ मामला ही नहीं है. तो ये देखो पॉइंट्स कैसे है. फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज, अट्रैक्टिव, कलरफुल. एनर्जी सेव हो गई. देन फ्लावर्स नीड नॉट बी सेंटेड. जैसे मैंने कहा था अभी, attractive and bright that clothing and all that was not required there in the work from home, isn't it? Then तो एनर्जी सेव हो जाती थी. स्प्रे मार के जाने की जरूरत नहीं है. अब देखो कंपनी में जा रहे काम करने के लिए तो कितना स्प्रे मारते हैं. अब घर में बैठना है तो क्या स्प्रे मारना है, isn't it? So that means scented, need not be scented. Then that need not be with nectar. नेक्टर या हनी जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए रहता है, वो नहीं रहा तो भी चलता है, isn't it? And then it need not be with abundant pollen grains. That's why a lot of energy is saved by the plant, and that is very beneficial from the point of view of the plants, I will say. Okay. Then another very important thing that एक तो फेल नहीं हो रहा है, दूसरी बात एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी भी रिक्वायर्ड नहीं है. द प्लांट्स कैन बी केप्ट जेनेटिकली प्योर. प्लांट्स कैन बी केप्ट जेनेटिकली प्योर. ये जेनेटिकली प्योर हो सकते हैं, रह सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बिकॉज दैट जीन्स कैनॉट गेट चेंज. सेम पोलन ग्रेन, that means same male gamete from the same flower, female gamete from the same flower, same genes. So genes will not be changed, and the plants can be kept genetically pure. It means that the desirable varieties can be continued from generation to generation. कई बार ये जरूरी होता है. जैसा मैंने कहा था, that particular variety like अल्फांसो मैंगो जो है, मैंगो की कुछ वैरायटी है जो सबसे डिजायरेबल है, हपूस जिसको हम कहते हैं. तो पर्टिकुलरली दैट मैंगो वैरायटी रिमेन एज इट इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इफ सेल्फ पॉलिनेशन इज देयर, बट क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. समझो उस अल्फांसो मैंगो जो है उसके स्टिग्मा पर बाहर किसी दूसरे लोकल वैरायटी का पोलन ग्रेन आकर बैठ गया, मैंगो का ही, then that will make the hybrid and that will not have the same quality, isn't it? तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन में हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होता है. and that's why these are the advantages of self pollination. okay, बहुत ही सिंपल एडवांटेजेस मैंने बताए. that plants can be kept genetically pure, desirable characters can be maintained. डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, जैसे कि टेस्ट है एंड पर्टिकुलरली न्यूट्रिशियस वैल्यू है, व्हाट इट मे बी, कैन बी मेंटेन्ड ओनली एंड ओनली बाय दैट सेल्फ पॉलिनेशन. तो ध्यान में आ रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन से वैरायटी चेंज हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन से वैरायटी चेंज होती नहीं है. So these are the merits of self-pollination or autogamy. My friend, it may be asked many of the times in NEET MCQ, which of the following are the merits of autogamy? Isn't it? Or which is the merit for autogamy, advantage of autogamy? A, B, C, D 4 जो दिए हैं उसमें 3 demerit दिए होंगे और एक मेरिट दिया होगा. देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट. या तीनों भी मेरिट दिए होंगे, डी विल बी गिवन ऑल ऑफ दीज,
या 2 दिए होंगे, D will be given both A and B. So anything is possible, or which is true for autogamy. Then इसमें से कोई भी पॉइंट आएगा, it is not expensive from the view of plants. True है. External agencies are not required. True है. Isn't it? यानी we can get MCQs there even from such type of article. It is required to have the knowledge of that. Okay? तो अब ये हो गए merits. Now same thing is there about the demerits also. That also. So demerits कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे. Demerits or disadvantages of autogamy. Sometimes it may be asked. तो demerits में देखो क्या क्या है. अब आप बोलेंगे इतने अच्छे मेरिट्स आपने बताए हैं वहां पे, व्हाट कैन बी द डीमेरिट देन. सही है, जब हम देखते हैं एक्सपेंसिव नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 100% इंश्योर्ड है, सक्सेसफुल है, then that particularly genetically plant can be kept pure. If all these characters are very helpful to the plant, then why there will be any demerit. बहुत अच्छा है. तो डीमेरिट्स भी उसके हैं. पहला डीमेरिट एक ऐसा है, that particular desirable characters cannot be introduced and undesirable characters cannot be eliminated. जो डिजायरेबल कैरेक्टर है पर्टिकुलरली नंबर 1 हम मैं कहूंगा इसमें, डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी that introduce. That desirable या new desirable characters cannot be introduced. नए कैरेक्टर्स कुछ डालने हैं. यानी सपोज वी आर हैविंग सम लोकल वैरायटी ऑफ मैंगो एंड दैट मैंगो इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी. हमको लगता है यार ये मैंगो बहुत पुअर क्वालिटी है, उसके मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं आती है. वैसे तो वो खपा देते हैं, isn't it? That is another thing. वो देख के लाना पड़ेगा हमको. पर एक्चुअली वो भी रहते हैं, वैसे भी सेलर रहते हैं. हाँ लेके जाओ साहब, बहुत अच्छा है. अब ये कितना सिली क्वेश्चन हम पूछते हैं बहुत बार, और कितना जिसको बोलते हैं ब्लाइंड होके पूछते हैं उसको. कैसा है मैंगो, कैसा है, अच्छा है क्वालिटी में. तो वो जो सेल करने वाला वो कहेगा क्या, नहीं साहब ये बहुत खराब क्वालिटी का है, ये मत ले लो, ऐसा कहेगा क्या? नहीं, वो तो आंसर वो ही देगा ना. Isn't it? That same answer, नहीं सर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेके जाओ, बिल्कुल मेरे भरोसे पे लेके जाओ. तो ये कई बार सिली क्वेश्चंस पूछते हैं. कोई अभी खाना खाने को बैठा है, हम आगे उसके घर में देख रहे हैं वो खाना खा रहा है, तो हमने कहना चाहिए ठीक है आराम से होने दो. तो पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जेवण चाललंय वाटतं, खाना खा रहे हो, isn't it? अब देख रहे हैं ना आप, वो खाना ही खा रहा है और क्या कर रहे हैं वहां पे. बट अगेन द सिली क्वेश्चन इज देयर. सो कई बार ऐसा होता है. तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, ये पहला है. एंड अनवांटेड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इलिमिनेटेड. अनवांटेड जो है, जो कैरेक्टर्स हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड कैन नॉट बी इलिमिनेटेड और रिमूव. तो ये एक बहुत डिसएडवांटेज जो है सेल्फ पॉलिसी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नॉट पॉसिबल. दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नॉट पॉसिबल. नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नहीं हो रहे हैं वहां पे. वही है, सेम टाइप ऑफ का मेल गैमेट, सेम टाइप का फीमेल गैमेट, and that's why new possible combinations are not at all there, and that's why variations not possible. अगर variations possible नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपने चार्ल्स डार्विन की थियरी तो पढ़ी होगी. only that organisms can take part in the organic evolution which can show variations in their characters. अगर वही कैरेक्टर्स है, वही चलते आ रहा है, तो प्रगति कैसे कहेंगे, उसकी इवोल्यूशन कैसे कहेंगे?
जब हम देखो हमारे व्यवहार में भी ऐसा होता है, एक आधी सिटी में हम जाते हैं, जब वहां पे हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पे खड़ी रही है, बड़े बड़े दैट फ्लाईओवर ब्रिजेस बहुत अच्छे आए हैं, लाइटिंग अच्छी हो गई सब तरफ, अंडरग्राउंड पूरा ड्रेनेज हो गया है, ऐसा जब देखते हैं सिटी में हम, दैट अच्छे अच्छे सोसाइटीज बन गए हैं, मॉल्स बन गए हैं, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, इजंट इट? प्रगति है, इवोल्यूशन है। पर वैसा की वैसा ही है। बहुत बार कहीं ग्राम में हम जाते हैं, विलेज में, we see that the same type of the people and same type of the conditions are there, no change। कुछ अगर चेंज दिखते हैं तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी दिखते हैं, so we say that it is undeveloped, it is not developed। so evolution का एक important point ये है, there should be some development, should be some new changes there and they are helpful, they should be helpful। ऐसा अगर है तो वो सही है। तो यहाँ पे वैसा तो नहीं हो रहा है, वही प्लांट है वैसा ही है, सेम टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स आर देयर, अनडिजायरेबल कुछ कैरेक्टर है, वी कैनॉट इलिमिनेट। उसकी सोर टेस्ट है उस मैंगो की, कैनॉट बी इलिमिनेटेड। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के हैं, कैनॉट बी गिवन। व्हाई? बिकॉज द जीन्स आर अगेन एंड अगेन सेम। Male gamete and female gamete, they are coming from same plant with the same genotype, and that's why new character is not possible, evolution is not possible, and that's why as variations are not possible, plants cannot take part in evolution, they are not able to take part in evolution, उनका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, and that is wrong, isn't it? So such species later on get rejected by nature and they will get eliminated। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आज कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, then that they are eliminated, that means पैसे यानी प्लांट इज ट्राइंग टू सेव द एनर्जी, पर वो उसको ही डिमेरिट, उसको खा जाएगा। And then another important thing is that particularly if it is not able to take part in evolution, वो तो useful नहीं है। Another thing is that weak progeny is produced. Weak progeny is produced by repeated self pollination। अगर self pollination ही होते जा रहा है, then disease resistance capacity of the plants will go on decreasing, and that's why particularly अभी ये जब मालूम हो गया ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन का जो कल्चरल इवोल्यूशन चलता गया वो इस डायरेक्शन में चलता गया, समझ लो आप। यानी इन ब्रीडिंग कहते हैं हम एनिमल्स में इसको, यू माइट हैव हर्ड दैट वर्ड देयर, इन ब्रीडिंग। यानी हम देखते हैं कुछ मैमल्स अलग टाइप के जो है, समझो डॉग का ही एग्जांपल ले लो। सपोज सम ऑफ द दैट बीच हैज प्रोड्यूस सम पपीज देयर दिस सीजन, तो कुछ पपीज जो उनके आज जन्म लिए हैं वो नेक्स्ट सीजन में मैच्योर होने वाले हैं। एक्चुअली हम देख रहे थे पर्टिकुलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते थे हम उसको, क्योंकि एक ही माता के कोख से आए हैं, isn't it? So that puppies we were saying, ये मेल है, ये फीमेल है, ये भाई बहन है, like that हम ऐसा बोलते थे। But in the next season we have seen that when they got matured, they did not know that relation and they started their breeding process in front of us, and at that time तो मेरा बचपन जो है बहुत मुरझा गया। मैंने सोचा यार ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो भाई बहन है यार। यानी that cultural evolution we know, but dogs do not know। तो उनमें खाली मेल और फीमेल ऐसा ही चक्कर रहता है, तो दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग, अंतर प्रजनन कहते हैं उसे बायोलॉजिकली। तो ह्यूमन बीइंग ने ये अवॉइड कर दिया, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, इसको अवॉइड कर दिया, एंड फॉर दैट पर्पस वेरी नोबल रिलेशंस हैव बीन क्रिएटेड देयर, फैमिली रिलेशंस हैव बीन क्रिएटेड देयर, that just like that father and daughter, mother and son, brother sister, ये relations का मायना क्या है? That means they are related with the same genes,
and they should be prohibited for what? For inbreeding. Inbreeding ये मेल फीमेल है मालूम है, but inbreeding should be avoided. And ये जो cultural evolution आ गया, that's why human evolution is going on and going on. In every generation I am finding the species are becoming more and more sharp. हम बचपन में जितना शार्प थे उससे ज्यादा हमारे ग्रैंडसन्स है उसी एज में. तो ये शार्पनेस क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अभी प्लांट्स को ये मालूम नहीं है, इजंट इट? या अदर मैमल्स को मालूम नहीं. सो वी आर लकी टू बी देयर नोइंग दैट. और उसके रेमेडी भी हम फाइंड करते हैं. ओके, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्रीडिंग देयर इन द क्लोज रिलेशंस. क्लोज रिलेशंस में ऐसा ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, सो वीक प्रोजेनी इज प्रोड्यूस एंड लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स, लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स, fruits and seeds will be produced by such plants. तो ये क्या, उसका कोई मायना ही नहीं रहता फिर, isn't it? Flowering will be less, fruiting will be less, seeds will be less. Even the germination period of that seed will be also very delayed. अगर हम चेक करते हैं एक ही टाइम पे one seed obtained by self-pollinated plant and other by cross-pollination, then cross-pollinated seed will undergo germination very fast. So these are all disadvantages. तो ये भी वैसे ही MCQ बन सकता है नीट का. आप बिल्कुल लर्न करो उसको अच्छी तरह से. Which of the following is true for cross that autogamy? Which of the following is a demerit for autogamy? Then which of the following is not a merit for autogamy? तो ये जो है इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है. So I'm sure that you have understood this concept very clearly, and what are the examples I have given. कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो हमें पसंद आते हैं. तो बिल्कुल आपको भी पसंद आए होंगे. तो डेफिनेटली कमेंट में वैसा लिख दो एंड डेफिनेटली गिव द लाइक्स एंड शेयर्स टू दिस वीडियो. शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल आल्सो. और अभी इसी चैनल पर काटे सर बायोलॉजी यू विल फाइंड वन MCQ एवरी डे जो आपको नीट के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा. सो पर्टिकुलरली गेट दैट MCQ एंड गेट प्रिपेयर्ड वेरी वेल. और बीच में बिल्कुल अभी ये 17th ऑफ द मार्च के बाद में जब तीनों भी बोर्ड्स के पूरे पेपर्स हुए होंगे and you will be ready for preparing with that MCQs etc. for NEET. So I will give one special lecture there, and I will make the advice how to prepare yourself for NEET in biology, isn't it? तो वो भी लेक्चर आप जरूर देखिए और कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल. आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो. थैंक्स अ लॉट. हैव अ गुड टाइम.